वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट इंडिया 2023 भारत के निर्माण उद्योग के लिए बना रहा है स्थायी भविष्य। देश में प्रदर्शनियों के प्रमुख आयोजनकर्ता इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया 18 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट इंडिया एक्सपो के 9वें संस्करण के आयोजन की तैयारियों में जुटा है। वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट इंडिया कॉन्क्रीट उद्योग के लिए देश की अनूठी प्रदर्शनी है, जो विश्वविख्यात वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट लास वेगास के भारतीय समकक्ष के रूप में कार्यरत है। कार्यक्रम में 10,000 से अधिक औद्योगिक पेशेवर एवं 200 से अधिक विश्वस्तरीय प्रदर्शक ऐसे आधुनिक प्रोडक्ट्स, तकनीकों एवं इनोवेशंस को पेश करेंगे जो कॉन्क्रीट उद्योग को नया आयाम दे रहे हैं। प्रदर्शनी में कॉन्क्रीट, मजदूरी, निर्माण संबंधित उपकरणों पर रोशनी डाली जाएगी। यह प्रदर्शनी आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों, बिल्डरों, कॉन्ट्रैक्टर्स एवं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए ज्ञान के आदान प्रदान हेतु मुख्य मंच की भूमिका निभाएगी। एक्सपर्ट्स बोलतीलच, पण मी एका वेगळ्या मुद्द्याला हात घालतोय। वी आर हॅव्हिंग व्हेरी मच डायव्हर्सिफाईड टेक्नॉलॉजीज अँड न्यू टेक्नॉलॉजीज ज्या विच आर कमिंग टू आवर कंट्री। इफ यू सी द वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट हॅपनिंग इन लास वेगस, it is an 8-day show with some technological development and educational programs are being arranged. I also see that it will happen in India in very near future. At the same time, as contractors, we are facing, though this is a very big industry, as आम्ही असा प्रॉब्लेम फेस करतोय की we are facing the problem of labor. आपल्याकडे अनएम्प्लॉयमेंट खूप आहे आपण म्हणतोय, पण देर आर व्हेरी बिग अपॉर्च्युनिटीज इन कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, नॉट ओनली इन लेबर, फ्रॉम grassroots level to the higher hierarchy also. And these whatever technologies we will be discussing has to be experience, learn and share about new dimensions in concrete technology, equipment, materials, testing. I think the organizers, Informa, have done a brilliant job to bring it to India again, and it will reach more heights about sustainability in construction as well as innovations through various technologies. So I think this is a great platform, and this is the platinum era of Indian construction industry, and I think we will see more glory days in civil engineering fraternity. Thank you very much. Thank you very much. किस तरह से इसे देखते हैं, आने वाले दिनों में कितना फायदा होगा इंडियन कंस्ट्रक्शन मार्केट को? तो मेरा नाम आलोक रंजन है। आई एम अ पार्टनर एट टोरेंट एडवाइजर्स। वी प्राइमरली वर्क विद प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट एजेंसीज इन द मैनेजमेंट एडवाइजरी। For world of concrete kind of events, this has been, I would say, the event जो globally which has been very popular. Now we are seeing the explosion of the event in India. I see this event as a game changer in the Indian construction industry, especially at a time when artificial intelligence as a technology is there. We, as a firm, we would be publishing a white paper on AI in the construction industry, and in this white paper we will talk about a lot of aspects where exactly artificial intelligence as a technology can help and enable construction industry as a whole, and how exactly it is going to impact jobs or not, and how exactly it is going to augment human capabilities so that more and more opportunities will be created within the industry across different project life cycles. So I would invite all of you to join the World of Concrete event. This is a great opportunity for the industry and global stage interaction. So thank you so much Informa Markets for providing Torrent Advisors this opportunity to be part of this great event. कॉमरेड साहब ने एक्सप्लेन किया कि वी आर यूजिंग द वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी। उसमें तो हमको ज़्यादा इंटायर रोड को रिप्लेस करने का ज़रूरत नहीं है। वी कैन बी
doing the white topping on top of the existing road itself. And आजकल तो even ultra high performance concrete भी बात कर रहे हैं. Ultra high performance concrete में we are going to get the strength of even up to 200 MPa. Normally जो concrete होता है 50 to 60 MPa ही होता है. Ultra high performance concrete में 200 MPa होता है. Service life using that also will become very high. 100 years आराम से होता है without maintenance. आपको maintenance करने का जरूरी नहीं है. And from that way it's possible for us to mitigate all this the economic problems and also the sustainability issue. बट ग्राउंड जीरो पर अगर बात करें कंक्रीट रोड की तो के लिए आप में इंटरेस्ट है, आप रुचि रखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। मैं मोटर्स के बारे में बात करूँगा, जैसे वॉल पुट्टी हुआ, प्लास्टर्स हुआ या टाइल एडेसिव्स हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, ये कंक्रीट में नहीं आती लेकिन कंक्रीट के साथ ही आती है। मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आपके घर में जब कोई चीज़, कोई पेंट हो रहा है, कोई टाइल्स आप चेंज कर रहे हो, तो क्या आप देख रहे हो कि मीडिया में लेटेस्ट क्या आप गूगल कर रहे हो? आप 1000 चीज़ के लिए गूगल करते हो, लेकिन क्या आप ये टेक्नोलॉजी गूगल कर रहे हो? आप नहीं गूगल करते, इसलिए आपको नहीं मालूम होता कि लेटेस्ट क्या हो रहा है। जैसे प्लास्टर, क्या आपको पता है रेडीमेड प्लास्टर आता है, वो मेसन या मिस्त्री आपके घर में आएगा, सैंड सीमेंट को मिलाएगा, अब वो कितना स्किल्ड है हमें मालूम नहीं। अगर वो सीमेंट को कम मिलाएगा तो आपका प्लास्टर उखड़ आएगा क्योंकि उसमें वो एडेजन होगा नहीं। अगर वो सीमेंट को ज़्यादा मिलाएगा तो आपके दीवारों में पेंटिंग करने के बाद क्रैक आएंगे और वो क्रैक रिपेयर करने के लिए आपको फिर खर्चा करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आप बाजार से रेडीमेड प्लास्टर ले रहे हो जो फैक्ट्री में बना है, जो परफेक्ट है, और आपके मिस्त्री को सिर्फ पानी डालना है और उसको यूज़ करना है, यानी कोई गलती नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको पता है कि वॉल पुट्टी जो है वो सस्ती आ सकती है, ग्रे में कलर में आ सकती है और उसमें आपके पैसे बच सकते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे वॉल पुट्टी वाइट क्यों है? तो वॉल पुट्टी, बहुत लोग बोलते हैं वॉल पुट्टी वाइट इसलिए है कि पेंट अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं। पुट्टी का एक ही काम है, प्लास्टरिंग करने के बाद वॉल को 0-0 करना। अब वो कौन से कलर की है उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेंट का जो बेस है वो पुट्टी नहीं है, प्राइमर है, और प्राइमर वाइट ही है। तो आपका पेंट बहुत बेहतरीन दिखेगा। अगर प्लास्टरिंग के बाद आप ग्रे पुट्टी लगाते हो, वो स्मूथ होती है दीवार, उसके बाद प्राइमर लगाते हो और पेंट लगाते हो। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप पैसे बचा सकते हो और बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पा सकते हो। हमारे 2 दुश्मन हैं, रिपेयर और रीवर्क। रीवर्क मतलब हम करने के बाद हमें पता चलता है कि अरे हमने गलत किया, सबको उखाड़ो फिर से करो, ये हमारा दुश्मन है। और रिपेयर मतलब क्या? अच्छा बनाया, बिल्डिंग हो गया, सब रेडी हो गया, 1 साल में वापस रिपेयर के लिए आ जाता है। क्यों? हर रिपेयर और हर रीवर्क में हम सीमेंट वेस्ट कर रहे हैं, हम रेती वेस्ट कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम पानी वेस्ट कर रहे हैं। बॉस, कंक्रीट और हम में या सीमेंट और हम में एक सिमिलर फंक्शन है, हम दोनों को खारा पानी नहीं चलता। आपको खारा पानी चलता है? नहीं चलता, हमको फ्रेश पानी चलता है। सीमेंट को भी फ्रेश पानी ही चाहिए। तो फ्रेश पानी दुनिया में कम है, हमें पीने के लिए चाहिए, तो वही सीमेंट यूज कर रहा है। और अगर सीमेंट को आप पानी दे रहे हो और उसमें रिपेयर और रिवर्क कर रहे हो, घड़ी घड़ी काम कर रहे हो, तो आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, ये आप सोचो। जाओ हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मिले हैं। एंड ये हमारा शो जो हो रहा है वो 9th एडिशन ऑफ द शो है और ये मुंबई में रेस्को में होने वाला है। इस साल और 200 कंपनीज आ रही है, जो लास्ट ईयर अराउंड 160 कंपनीज थी। वी हैव गॉट इवन बिगर रिस्पॉन्स, लॉट मोर कंपनीज आर कमिंग इन। एंड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री से अराउंड 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर वी हैड अबाउट 6-6.5 हज़ार लोग आए थे। 6.5 से नियरली जो इंटरेस्ट दिख रहा है हमको 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आएंगे। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि जैसे इंडस्ट्री मूव हो रहा है जो राइट डायरेक्शन में, इंडिया का जो इकोनॉमी है स्पेशली which is going to be 5 trillion economy, उसमें से 1.4 trillion is going to come from this construction industry, which is going to be nearly 1/3 of our overall economy. तो इतना जो ग्रोथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो रहा है, ये हमारे इवेंट में सिग्निफाई हो रहा है। हमको सारी जगह से सपोर्ट आ रहा है। इस बार गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेक होल्डर से, PMC से यहाँ पे आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आ रहा है,
तो अलग अलग बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आ रहा है. सो दिस इज शोइंग और इकोनॉमिक थ्राइविंग इन कंस्ट्रक्शन बहुत जगह पे हो रहा है. कंक्रीट का जो यूज़ है वो बढ़ रहा है इससे, और कंक्रीट की कॉस्ट भी कम हो रही है. उसकी नई नई टेक्नोलॉजी जो डिस्प्ले पे है वो आप जो यूज़ कर सकते हो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सारी हमारे शो में मिलेगी. सो आई थिंक दिस इज समथिंग वी आर हैप्पी कि ये शो एक इंडिया को एक अलग हम एक छोटे रोल में लेकर है कैटलिस्ट की तरह, जिससे इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सर. G20 के बाद में काफ़ी देश इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए. कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कितनी कंपनियाँ इंटरेस्टेड हैं आप? In terms of international participation जो आपने सुना, we have about 10% international participation जो यूरोप से, जर्मनी से है, फ्रांस से है, इटली से है, यूएस से कंपनीज आने वाली है ये शो में. सो अलग अलग G20 नेशन से भी पार्टिसिपेट देखने मिल रहा है ये शो. ऐसा क्या सुझाव है आपका, जरा ओपिनियन? मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ. जैसे गड्ढे भरने में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में है. प्रीवियसली हम लोग कोलमिक्स से भरते थे. अभी भी ऑल ओवर इंडिया कोलमिक्स से भरा जाता है. एक तो टेक्नोलॉजी कोलमिक्स, दूसरा जो टेक्नोलॉजी है मास्टिक, तीसरा टेक्नोलॉजी है रैपिड हैंडिंग कंक्रीट, चौथा टेक्नोलॉजी है जियोपॉलीमर कंक्रीट. ये अलग अलग टेक्निक्स है जिसे हम गड्ढे भर जाते हैं, वेयर वी कैन फिट द पॉटर्स विथ ऑल दिस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वेयर द पॉटर्स ऑकर ऑन रोड्स. फॉर एग्जांपल नाउअडेज वी आर यूज रैपिड हैंडिंग कंक्रीट टेक्नोलॉजी. जैसे गड्ढे भरते हैं वो एक बार गड्ढे भरने के बाद 6 घंटे में हम लोग ट्रैफिक वी कैन ओपन फॉर ट्रैफिक आफ्टर 6 hours. Geopolymer concrete is used where potholes occurs on concrete roads. जब भी हम जियोपॉलीमर कंक्रीट से गड्ढे भरते हैं वी कैन ओपन दैट विद इन 1 hour. सो अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है. सिविल इंजीनियर को खाली देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ कर सकते हैं. अभी काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मार्केट में है और ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर आप गड्ढे भरते हैं तो वो दोबारा गड्ढा नहीं होता है. या फिर जब आप सड़क बनाते हैं तो हम लोग ऐसी सड़क बनाना चाहिए कि एक बार सड़क बनाने के बाद उसके ऊपर गड्ढे नहीं आना चाहिए. जैसे मैं बता रहा था अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग. अगर आप अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग से सड़क बनाते हो तो एक बार अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग से अगर आप सड़क बनाते हैं तो उसके ऊपर एक भी गड्ढा नहीं आता है. अगर आप सड़क कंक्रीट रोड से बनाते हैं तो कंक्रीट रोड पर भी गड्ढे नहीं आते हैं. ये एक्सपीरियंस बताता है. तो दोनों में कास्ट का डिफरेंस कितना है जो आप बता रहे हैं दोनों तक में? आप कंक्रीट रोड जब हम नया रोड बनाते हैं वो हम लोग कंक्रीट रोड यूज़ करते हैं. जब हमें रिपेयर करना होता है, रिहेबिलिटेशन करना होता है, तब हम लोग अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग यूज़ करते हैं. थैंक यू सो मच. अच्छा देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा जो अपना मानना है, जो मेरी याददाश्त है उसके हिसाब से बहुत सफल रही. और सबसे बड़ी सफल इसलिए रही कि बहुत हेल्दी इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि जो हमारे स्पीकर्स आए वो बहुत अपने इंडस्ट्री के लीडर्स हैं. और सबसे बड़ी बात ये आई कि मीडिया बहुत अच्छे नंबर्स के अंदर टर्न आउट हुआ है और मीडिया ने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और बहुत अच्छी पेशेंस दिखाई है. क्योंकि ये सेक्टर को अगर हमने आगे लेके जाना है तो उसमें मीडिया का एक बहुत अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कि आप लोगों के पास जो एक लिखने की ताकत है वो किसी और के पास है. और ये सेक्टर तो मेरे ख्याल से सिर्फ भारत का ही नहीं, हर कंट्री के अंदर इकोनॉमिक जिसे हम बोलते हैं हिस्सा, इंजन ऑफ ग्रोथ, वो है, लाइफ लाइन है हर इकॉनमी की. और हमारा इवेंट जो 18 से 20 अक्टूबर में आने वाला है और उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मुंबई में इवेंट है और मुंबई का मीडिया जब आएगा तो वो सेक्टर के बारे में भी आगे बात करेगा. और जो आपने अभी डिस्कशन में सुना होगा कि मेन फोकस जो हमारा इस इवेंट का इस साल का हमने पोजिशनिंग की है, हर इवेंट की एक पोजिशनिंग होती है, उसको हमने बिल्कुल एक नया दिशा दी है और वो है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी पे हमने बहुत फोकस रखना है इस बार, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है जो भारत को और देशों के मुकाबले आगे लेके जा सकता है और कम समय में.
और सबसे बड़ा क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि बहुत ट्रेडिशनल तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से मटेरियल्स का यूज़ होता है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो कम समय के अंदर बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ला के देंगी। जैसे प्रीकास्ट अब जितने भी मेट्रोज के बन रहे हैं या टनल्स बनती हैं उससे सब प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी है। हम लोग रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं कि कैसे रोबोटिक्स या ऑटोमेशन हमारे साइट्स में काम आ सकता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे काम आ सकती है। और कल हमारे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमें एक आइडिया और मिला कि ऐसे भी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो जैसे हमारे बॉडी का स्कैन होता है वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स का स्कैन करती है मशीन, तो उसे ये बता दें कि इसमें क्या कमी है और क्या इसके अंदर उसमें करेक्शन किया जाए। तो ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं। और ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पहले वेस्ट में टेक्नोलॉजी आती है फिर भारत में आती है, आने वाला समय ऐसा लगेगा कि भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भारत की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होगी। तो बहुत अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन रहा और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सबके साथ हमारा कन्वर्सेशन ऐसा हुआ कि आप सबने उसको सराहा और अच्छे नंबर्स के अंदर आप लोग आए हैं। तो मेरे पास आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सेक्टर के बारे में, इवेंट के बारे में अच्छा लिखें, मोर सो अबाउट सेक्टर, क्योंकि जैसे सेक्टर बढ़ेगा तो इवेंट का बढ़ना तो जायज़ है, तो लाजिम है। थैंक यू सर। थैंक यू।